Hello everyone, myself Sunil Kumar Singh, Assistant Professor Mathematics, Ambalika Institute of Management and Technology, Lucknow. Today is my lecture on Engineering Mathematics 1, subject code KS 103T, and it contains the module 3 or CO3. The topic is Lagrange's method of multipliers. Lagrange's method of multipliers is one of the wonderful method for finding the maxima and minima for the function of several variable under the constraint, right. So, after this lecture a student will able to understand what is the maxima and minima for the function of several variable and how to find the maxima and minima with the help of Lagrange's multiplier, and what is the Lagrange's multiplier about that. So, before starting the lecture, let me introduce about the mathematician Lagrange. So, the Lagrange's multipliers named after Joseph Louis Lagrange. Okay. So, Lagrange's multiplier provides a strategy for finding the maxima and minima for a function of several variable under the subject to constraints. To find maxima and minima for function more than 3 variables when the variables are not independent, but they are connected by some given relation, right. Now, second question is, when are Lagrange's multiplier useful? Why we use Lagrange's multiplier and when it is useful? One of the most common problem in calculus is that of finding maxima or minima of a function, and difficulties often arise when one wishes to maximize or minimize the function of under the some constraints, or we can say that it is difficulties arise when one wishes to find the maxima or minima of a function subject to a given constraint. This method of Lagrangian multiplier is a powerful tool and very give the basic ideas about the finding the or solving this class of problems. So, it is very much useful while solving the maximum minima problem under certain or under given constraints. Next question arises, what is the method and how to find the maxima and minima with the help of Lagrangian multipliers. So, while using Lagrangian multiplier, we have to find what is given and what we have to find, what is given and what we have to find. इसी को दूसरे शब्दों में कहूँगा, what we have to find means that will be denoted by generally f, and what is given that we will generally denote by g, and this given is also function of x comma y comma z, and f which we have to find, that is also the function of x comma y comma z, but g is connected with f, g is connected with f, or we can say that given constraints g, with the help of which we can find the function f, maxima and minima of the function f, right. But there is a drawback of Lagrange's multiplier. Lagrange multiplier का एक ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने मैक्सिमा मिनिमा तो बता दिया, इन्होंने स्टेशनरी पॉइंट भी बता दिया, बट नेचर ऑफ दी मैक्सिमा मिनिमा इन्होंने एक्सट्रीमम वैल्यू बताया, नेचर ऑफ दी मैक्सिमा मिनिमा नहीं बताया, ये इनका ड्रॉबैक था. सो how to find the maxima and minima with the help of Lagrangian multiplier. So, first of all we will consider a function f of x comma y comma z whose maxima and minima is to be find under the subject to a constant, and subject to the constant is g x y z, matlab g is the function of x y z. So, solve the following system of equation f of x comma y comma z is equal to lambda g x y z, g x y z is equal to k, some constant k. Now, putting the value of x comma y comma z from the first step
into the function x y z to identify the maxima and minima values provided they exist, and this constant lambda is called the Lagrange's multiplier. This constant lambda is called the Lagrange's multiplier, right, and we will find the value of lambda, and putting that we will find the value of x comma y comma z, and which is nothing but the stationary point at which the function is either maxima or minima. So, what is the method and how to calculate the Lagrange's equations? So, let f x comma y comma z be a function of x comma y comma z, which is to be examined for maximum minima value, and let the variable be connected by the relation phi x y z, है ना, जिसे मैं g कहा था, यहाँ पे मैंने phi लिया है, phi x comma y comma z हमने कहा इससे कनेक्टेड है. Since x comma y comma z is to have maximum minima value, it means del a by del x equal to 0, del a by del y equal to 0, del a by del z equal to 0, right. And with the help of total differentiation, del a by del x dx plus del a by del y dy plus del a by del z dz equal to 0. This is the concept from the total differentiation. Same also from the one taking the differential, we get del phi by del x dx plus del phi by del y dy plus del phi by del z dz equal to 0. This also comes from the total differentiation, right. And for the function phi, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने यहाँ इक्वेशन का नाम दिया था, जैसे इक्वेशन 1 था आपका जो phi है, इक्वेशन 2 है आपका जो टोटल डिफरेंशिएशन से f के बारे में आपने कहा del a by del x dx प्लस del a by del y dy प्लस del a by del z dz इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन 3 है जो phi के लिए हम लोगों ने बनाया टोटल डिफरेंशिएशन के हेल्प से del phi बाई del x dx प्लस del phi बाई del y dy प्लस del phi बाई del z dz इज इक्वल टू 0. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. तो इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 3 को लैम्डा से और ऐड किया 2 में, तो हम लोग को ये मिलेगा del a by del x प्लस लैम्डा टाइम्स del phi by del x dx प्लस del a by del y del phi by del y dy प्लस del phi by del z प्लस del phi by del a by del z plus del phi by del z dz is equal to 0. Now, this equation satisfied identically coefficient dx dy dz separately equal to 0. So, this separately equal to 0, this is separately equal to 0, this is separately equal to 0. So, we will get this one, and this equation is known as Lagrange's equations. These equations is known as Lagrange's equations. These equations known as Lagrange equation. Now, with the help of equation 1, 4, 5 and 6, it gives the value of x comma y comma z, and x comma y comma z is nothing but the stationary point for which function x comma y comma z is either maximum or minimum, right, for which the function x comma y comma z is either maximum or minimum, right. So, while solving problem with the help of f is the function which we have to find, and phi is the function which is given, means constant, right, or we can say that phi is connected with f. So, del f by del x dx plus lambda times del phi by del x dx equal to 0, second del f by del y plus lambda del phi by del y 0, del f by del z plus lambda del phi by del z dz is equal to 0. So, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इन सभी के रिस्पेक्ट में हम लोग इक्वेशन लिखते हैं. इस इक्वेशन को लैग्रेंज इक्वेशन कहते हैं, और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. सो जनरली वी विल मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई जेड एंड एडिंग वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, or by equating the value of lambda in terms of x, y, z, we will and with the help of phi, or we can say that with the help of given function phi, we can find the value of lambda, and putting the value of lambda we can find the value of x, y, z,
and for that x y z we have to calculate the f of x y z for which, or we can say at which the function is either maximum or minimum. So, let us take one example. Find the largest rectangular parallelepiped, find the volume of the largest rectangular parallelepiped, that is box with edges parallel to the x axis, parallel to axis inscribed in the ellipsoid in the ellipsoid. So, first of all we will say that what is rectangular parallelepiped? What is rectangular parallelepiped? So, rectangular parallelepiped is a vessel or is a geometrical object which is like cube or cuboid, but something different from cube and cuboid. क्यूब और क्यूबाइड में क्या होता है कि इसका सारा एंगल 90 डिग्री होता है, बट रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड में सारा एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड होता क्या है? तो एक ऐसा वेसल है जो क्यूब या क्यूबाइड शेप में होगा, बट इसका सारा एंगल ये जो है ये 90 डिग्री नहीं होगा, हल्का सा बेंड है ना, हल्का सा उसको बेंड समझिए, मतलब each angle, it means each angle not equal to 90 degrees. So, this type of geometrical object is known as rectangular parallelepiped, right. So, we have to find the volume of the largest rectangular parallelepiped, that is box, with edges parallel to axis inscribed in the ellipsoid. अब second question arise होता है, what is ellipsoid? इलिप्सॉइड क्या होता है? तो इलिप्सॉइड क्या है? इलिप्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी को एक कोऑर्डिनेट और बढ़ा देंगे तो हो जाता है इलिप्सॉइड। सो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, और वी कैन से दैट लार्जेस्ट वॉल्यूम दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्सॉइड। ये आपका हो गया एलिप्सॉइड, इसके अंदर लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड दैट इज इंस्क्राइब्ड, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि कुछ ऐसा ही मिलेगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि हम लोगों ने माना लेट 2x 2y एंड 2z, लेट 2x 2y एंड 2z be the length, breadth and height of the rectangular parallelepiped, then volume will be equal to 8xyz, which is we have like f, and given x square by a square plus y square by b square plus z square by c square is equal to 1, ये आपका हो जाएगा phi equal to, which is -1 कर दिया हमने, phi equal to, right. Phi equal to this. Now we have to find the Lagrange equations. So what will be the Lagrange equations? Lagrange equation will be equal to del A by Lagrange equations will be equal to del A बाई, और f की जगह हमारा v है तो del v बाई del x प्लस लेमडा टाइम्स del phi बाई del x इक्वल टू 0। और इसी तरह से यदि हमने v डिनोट किया है तो del v बाई del y प्लस लेमडा टाइम्स del phi बाई del y इक्वल टू 0, और del v बाई del z प्लस लेमडा टाइम्स del phi बाई del z इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया लैग्रेंज इक्वेशंस, जो कि मैंने थ्योरी में आपको बता दिया है। अब यहाँ पे f हमारा फंक्शन है, ये इन्होंने ऐसा बताया, हमने v वहाँ पे लिया था तो मैं v की बात कर रहा हूँ। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे और v आपका है 8xyz वॉल्यूम, जब आप लैग्रेंज इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा 8yz प्लस लेमडा टाइम्स 2x अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
क्योंकि वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से 8xz प्लस लेमडा टाइम्स 2y बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और उसी तरीके से 8xy प्लस लेमडा टाइम्स 2z बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और 3 और 4 5, राइट, 3 4 5 जो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है, ऐसे हमने डिफरेंशिएट देखिए किया है, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे भी आपको समझाया हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइंग 3 इंटू एक्स, 3 मतलब इक्वेशन 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू इक्वेशन 4 इंटू वाई प्लस 5 इंटू जेड, देन व्हाट वी विल गेट। देखिए इक्वेशन 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8xyz प्लस लेमडा 2x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 8xyz लेमडा 2y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 8xyz लेमडा 2z स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इट मीन्स वी विल गेट 24xyz प्लस लेमडा, यदि हम कॉमन ले लेंगे तो फिर से हमको मिलेगा x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और आप इक्वल टू 0। और आप जानते हैं कि इसका वैल्यू आपका 1 है, सो लेमडा इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 24xyz। सो लेमडा विल बी इक्वल टू माइनस 24xyz। ये आपका हो गया लेमडा का वैल्यू। और इस लेमडा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में और 3 में, 4 में और 5 में। तो यहाँ पे देखिए जब पुट किया गया है तो पुट करने के बाद आपको यहाँ कैलकुलेशन करके ये दिखाया गया है कि आपका यहाँ पे जो वैल्यू जो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 सी स्क्वायर। सो यहाँ पे हो जाएगा 8xyz, ये आपका था वॉल्यूम, है ना। तो 8 और x की जगह वैल्यू पुट कर दिया गया है, y की जगह वैल्यू पुट कर दिया गया है और z की जगह पुट। x का वैल्यू क्या हो जाएगा a/√3, x विल बी इक्वल टू, सिमिलरली y विल बी इक्वल टू b/√3 एंड यहाँ से z विल बी इक्वल टू c/√3। जब इसका वैल्यू आप वॉल्यूम वीबी में पुट करेंगे तो 8abc अपॉन में √3, so it will be equal to 3√3. So which is the maximum volume of the rectangular parallelepiped that is inscribed in the ellipsoid. तो इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा कि आपके पास एक फंक्शन गिवन था, आपके पास एक फंक्शन गिवन था, वो था आपका f, जो कि था वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड विच इज इक्वल टू 8xyz, और इन द ellipsoid, inscribed in the ellipsoid, it means under certain constraint, और constraint क्या था ellipsoid, उसको हमने phi से डिनोट किया, और phi क्या था x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है इलिप्सॉइड का इक्वेशन होता है। सो ए फॉर जी और वी कैन से दैट ए फॉर फाई, इनकी मदद से हमने लैग्रेंजेस इक्वेशंस बनाए, और लैग्रेंज इक्वेशन बनाने के बाद जो 3 4 5 इक्वेशन जो हम लोगों ने जो लैग्रेंज इक्वेशंस बनाया हम लोगों ने, लैग्रेंज इक्वेशन क्या बना देखिए। पहला लैग्रेंज इक्वेशन बनाना डेल बी बाई डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाई बाई डेल एक्स, तो उसको हम लोगों ने कहा 8yz प्लस लेमडा 2x बाई ए स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट किया। सेकंड लैग्रेंज इक्वेशन बना, थर्ड लैग्रेंज इक्वेशन बना, जिसे मैं इक्वेशन 3 4 और 5 कहा। इक्वेशन 3 में x से मल्टीप्लाई किया, 4 में y से मल्टीप्लाई किया, 5 में z से मल्टीप्लाई किया, और इनको ऐड किया। ऐड करने के बाद हमें
देखिए यहाँ पे लिखा 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई प्लस 5 इंटू जेड, इनको ऐड करके लेमडा का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया। लेमडा का वैल्यू जो आया उसको पुट करके एक्स वाई जेड हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो एक्स का वैल्यू मिला हम लोगों को a बाई रूट 3, वाई का वैल्यू मिला b बाई रूट 3 एंड जेड का वैल्यू मिला c बाई रूट 3। इस वैल्यू को, चूंकि ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, इस वैल्यू को एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड में पुट कर दिया, और एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड हमारा क्या है, 8xyz है। इसमें वैल्यू पुट कर दिया ए बी सी का xyz का, तो मुझे कैलकुलेशन मिला 8abc अपॉन 3√3 विच इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्सॉइड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4, 12 फ्रॉम द स्फीयर। देखिए एक पॉइंट है 3, 4, 12, यहाँ से मान लिया इसको पी पॉइंट है, यहाँ से किसी पॉइंट का डिस्टेंस मान लिया x, y, z है, ये डिस्टेंस हमारा कोऑर्डिनेट हमारा। तो x, y, z से 3, 4, बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला से क्या मिलेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 12 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है, राइट। और इसे हमने एज्यूम कर लिया, इसके डी स्क्वायर यदि हम करेंगे तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा। इसे यदि हम डी स्क्वायर समझ लें तो स्क्वायर रूट हटा दिया, और इस डी स्क्वायर को फंक्शन x, y, z हमने डिनोट कर लिया, है ना, x, y, z हमने डिनोट कर लिया। और हमारा f के बाद फाई जो कि कांस्टेंट जो गिवन होता है वो हमारा क्या है, फ्रॉम द स्फीयर, स्फीयर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट, इक्वल टू 1 फ्रॉम द यूनिट स्फीयर। बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द स्फीयर, और ये स्फीयर कैसा है, यूनिट स्फीयर है, ठीक है ना, यूनिट स्फीयर है, हुज रेडियस इज 1, इसको हमने फाई एज्यूम किया, और फाई हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, इन दोनों की मदद से हमें लैग्रेंज इक्वेशंस लिखना है। सो लैग्रेंज इक्वेशंस आर डेल ए बाई डेल एक्स प्लस लेमडा टाइम्स डेल फाई बाई डेल एक्स। सो डेल ए बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स माइनस 3, y माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 12 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, प्लस लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, उसी को लिखा गया 2 लेमडा एक्स। सिमिलरली 2 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 2 लेमडा वाई इक्वल टू 0। सिमिलरली 2 इंटू जेड माइनस 12 प्लस 2 लेमडा जेड इक्वल टू 0। सो दीज आर द लैग्रेंज इक्वेशंस। इसको हमने 3, 4, 5 से डिनोट किया, और 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 4 को y से, 5 को z से, और इनको ऐड किया। तो ऐड करने के बाद मुझे ये मिला, राइट। चूंकि यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 1 है, चूंकि यूनिट स्फीयर है 1 है, तो बेसिकली आपको मिलेगा 3x प्लस 4y प्लस 12 जेड इक्वल टू 1 प्लस लेमडा। सॉल्व करके ये वैल्यू मिलेगा, राइट। और यूजिंग 2 का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हमने 1 वैल्यू पुट किया है फ्रॉम इक्वेशन 2, इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिखा यूजिंग 2। So from 3, 4 and 5 we get that x is equal to 3 by 1 upon lambda, y is equal to 4 by 1 upon lambda, and z is equal to 12 by 1 upon lambda. Now putting the value of x, y, z in equation 6, we have 9 upon 1 plus lambda plus 16 upon 1 plus lambda plus 144 upon 1 plus lambda is equal to 1 plus lambda. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो lambda का वैल्यू हमको 2 मिलेगा, 12 और माइनस 14। जब lambda 12 होगा तो x का वैल्यू 3/13, y का वैल्यू 4/13, z का वैल्यू 12/13, और लेमडा जब माइनस 14 होगा तो x का कोऑर्डिनेट माइनस 3/13, y इक्वल टू माइनस 4/13, z इक्वल टू माइनस 12/13, ठीक है ना। यह वैल्यू हम लोगों ने पीछे यहाँ पे रखा है, x इक्वल टू 3/1 प्लस लेमडा, लेमडा यदि 12 रखेंगे तो 3/1 प्लस 13, 1 प्लस 12 दैट इज 13, उसी को मैंने यहाँ पे
बताया है 3/13, 4/13 एंड 12/13। अब ये हमको लेमडा का दो डिफरेंट वैल्यू मिला, दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स मिले x, y, z। तो x, y, z जब हम डिस्टेंस वाले फंक्शन पे पुट करेंगे तो एक हमको डिस्टेंस मिलेगा, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3/13, 4/13, 12/13 एंड q -3/13, -4/13, -12/13। इस कोऑर्डिनेट के लिए हमने डिस्टेंस फाइंड किया तो मिला मुझे 12। नेक्स्ट के लिए हमने डिस्टेंस फाइंड किया तो हमें मिला 14 और इससे क्लियर हुआ कि 12 जो है हमारा वो मिनिमम डिस्टेंस है एंड 14 जो है हमारा वो मैक्सिमम डिस्टेंस है। 14 जो है हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो इस तरह से हमने मैक्सिमा एंड मिनिमम डिस्टेंस हमने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड। इसमें हमारा f जो था वो हमें किसी पॉइंट से 3, 4, 12 का जो हमें जो डिस्टेंस फंक्शन जो फंक्शन मिला वो f की तरह बिहेव किया और g हमारा वो सरफेस था और वी कैन से हमने फाई कहा है तो फाई वो सरफेस था स्फीयर, यूनिट स्फीयर, जहाँ से इसका डिस्टेंस हमें पता करना था, इट मीन्स ये बिहेव किया हमारा फाई। तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर में यही तो हम लोग काम करते हैं, f का फाई के साथ कनेक्ट करते हैं, जहाँ फाई जो होता है गिवन होता है, f जो होता है हमें फाइंड करना होता है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना था। इन दोनों की मदद से हम लोगों ने लैग्रेंज इक्वेशंस लिखे। उस लैग्रेंज इक्वेशन में लेमडा का वैल्यू इक्वेट किया, x का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ लेमडा, y का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ लेमडा, z का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ लेमडा, और उस x, y, z को स्फीयर वाले इक्वेशन में रख करके वहाँ से लेमडा का वैल्यू मिला। लेमडा का मुझे दो वैल्यू मिला, एक मिला मुझे लेमडा का वैल्यू 12 और एक मिला मुझे लेमडा का वैल्यू मुझे 2 मिला, एक मिला 12 और एक मिला -14। सो 12 के लिए एक हमें कोऑर्डिनेट मिला और -14 के लिए एक हमको कोऑर्डिनेट मिला। 12 के लिए जो कोऑर्डिनेट मिला उस पर हमें एक डिस्टेंस मिला, -14 के लिए एक डिस्टेंस मिला। तो हमें दो डिस्टेंस मिले, एक 12 मिले, एक 14 मिले। 12 आपका मिनिमम डिस्टेंस है एंड 14 आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।